Those of you who have not heard of Milind Vast in Mumbai circles is known as the man to go to, who people reach out to more for his advice on whether I should buy this particular fish or not. What do you say? This is my setup. And they generally ask him because he knows such a lot of things, not only about aquariums and aquarium fish. He is well versed into birds and various exotic birds. And I'm going to ask him a lot about that, and also into dogs. So a lot of people call him up for his advice, and his advice is absolutely free. The consultation is absolutely free, so there are no strings attached, and that is why he's so famous in Mumbai circles. And Milind, welcome to the Weekend Aquarist once again. Why don't you tell us a little bit about yourself? Yeah. आपका जरा एक introduction दे दीजिए. First of all, thank you, Amar. And guys, we are friends from many years now. I know Amar for many years, and I really appreciate a person who pours his heart, into the hobby. And Amar is one of them. There are few more people, they really care for the hobby and they do what is needed. So I was very happy when Amar told me, Milan, we have to, have a chat. And I'm very lucky, I will say, Amar, that I'm here for the first time and you're doing this recording. It's a wonderful setup, means believe me or not because I am here and first to record this. It's an awesome thing. This book remind me, our time, now it's Google, Yeah, जो yeah, भी चाहिए इमीडिएटली आप गूगल पे जाओ सर्च करो और थिंग्स आर रेडी. yes. लेकिन हमको हर एक बुक पढ़ना पड़ता था कि मतलब क्या है, यू नो for each and everything. Now it's very very easy, and we should thank for this. uh, Right. लेकिन अमर मैं ये कहूँगा कि you have done a wonderful thing with this weekend aquarist, and we and all of us, we thank you for this and giving us the opportunity to speak and come out to the people and reach to the people कि उनको जो भी problems है क्या है, we are there to help. Yeah, see, एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ वीकेंड एक्वेरिस्ट के बारे में. इट इज द थॉट आई हैड आफ्टर आई क्लोज डाउन ट्रॉपिको एक्वा एंड आई मैं फिर से कॉर्पोरेट में लग गया. आई स्टिल वर्क इन अ कॉर्पोरेट. आई हैड ह्यूमन रिसोर्सेज ओवर देयर बट आई वांटेड टू डू समथिंग. मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे जो हॉबीस्ट है, ओके, उस तक not only my experience, how can I get everybody's experience on the same platform so that they can share with the hobbyist. And we are all hobbyists. Right. We all started off, we are all hobbyists, and then we kind of progressed and got into the trade part of it also. But at the heart of it, everyone is a hobbyist, and we get time on the weekends Exactly. for the hobby. So that is why the weekend Right, hobbyist, right, right, aquarist. right. And you see it this way that every single person, okay, they're looking forward to the weekend so that they spend more time. On the And hobby. for us, okay, I would call it for the all hobbies, but for us aquarists, we just wait for the time where we are doing our maintenance in our aquarium and all. तो वैसे है. Right. तो once again welcome. Thank you. आप जरा ऑडियंस के लिए आपका इंट्रोडक्शन दीजिए. आपने कब स्टार्ट किया? बचपन से ऑब्वियसली, बट लेकिन कैसे कैसे आप उसमें ग्रो होते गए? क्या चैलेंजेस आए? आप बिजनेस में कब आए? ओके, एंड देन अभी आप क्या कर रहे हैं? तो इट वुड बी गुड फॉर द ऑडियंस आल्सो. Okay. So, guys, I started. I'm 52 running now. Okay. I started this when I was, I guess, 7 or 8. Let's not get into age and all. Okay. No, but let people know, Yeah, So when I tell them I'm 35 years old in this industry, people have to believe. So I started as a hobbyist. The first fish what I got was in beta. Okay. So I'm still in love with him, and betas, I really go crazy even as of now. I can spend days, not even hours, or I can spend days looking at betas.
Even when I go to Thailand, to the farms, I ensure that I pick most of the bottles which are there in the farm and see what type of beetles are there. सो ये ऐसे शुरू हुआ. फिर मैं धीरे धीरे बिजनेस में ऐसे आया कि मेरे डैड ही रिटायर्ड एंड ही वांटेड टू स्टिल वर्क, तो मैंने कहा व्हाई डोंट वी ओपन अ शॉप. तो आई हैड स्टार्टेड वर्किंग बाय द टाइम. तो वो रहते थे शॉप पे. इनकम तो कुछ नहीं था, बट आई वांटेड टू कीप हिम बिजी, एंड आई वांटेड टू लर्न दिस आल्सो द बिजनेस. तो धीरे धीरे ऐसा करते करते वी क्लोज डाउन ऑन दैट शॉप. फिर मुझे दूसरा अपॉर्चुनिटी मिला कुपर खराने में. सो वी स्टार्टेड अ शॉप ओवर देयर अमेजोन. बहुत सोच के मैंने वो नाम रखा था. बोला क्या नाम रखे, बोला अमेजोन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फिश आर Very nice. फाउंड इन Yeah, अमेजोन, yeah. तो वो नाम रखा. फिर थाने आया. थाने में तालाब पाली पे था. लास्ट मेरा ये था जो मरमेड स्मार्ट. मरमेड इसके लिए क्योंकि इट वाज रिलेटेड टू वाटर, और मार्ट इसके लिए क्योंकि हम लोगों ने वहां पे ट्रॉलीज रखी थी, लाइक लायंस मार्ट जो घूमते हैं Right, विद द ट्रॉली, right, यू कैन गो एंड शॉप, right, right. सो इसके लिए दी मरमेड स्मार्ट. लिटिल फिनिकी, लेकिन थोड़ा सा अलग कुछ करने का. बट स्टिल थिंग्स डिडंट वर्क आउट वेल फॉर अस वहां पे भी. तो मैं बोला अभी क्या करते, तो आई डू ऑनलाइन नाउ. सो अभी कोई बोलेगा कि अमर सर वी रेफर्ड यू, एंड आई वांट अ डॉग. मैं ये नहीं बोल सकता आई कैन नॉट गिव. लेकिन बाकी का कोई, मैं ये नहीं करते फिरता हूँ कि भाई तुम डॉग ले लो, तुम किटन ले लो, तुम बर्ड ले लो, या नो वन. लेकिन अमर का दोस्त है, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम टू गेट अ गुड पपी. Right. और एक चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई ऐसा हमको लिंक मिलता है, तो पीपल एक्सपेक्ट कि उनको कंसेशंस मिले पैसे में. सो आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, That's true. तो मैं लोगों को ये बोलूंगा कि जब भी आप अमर सर के पास आते हो किसी चीज के लिए, ही विल इंश्योर, ही विल गिव यू द बेस्ट थिंग, एक बेस्ट पपी. जब भी एक डॉग लेते तो I just want to clarify. I'm not into nude. You might get an idea and start calling me up also. ऐसा नहीं है. नहीं, ऐसा हाँ, मतलब example दे रहे हैं. एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. जैसे शिजू, हेयर और फर, ये जो फर्क है ना, यहाँ से शुरू होता है कि इसका कॉस्ट क्यों है ज्यादा, उसका साइज क्या है, उसका मजल क्या बोलता है, उसका बॉडी शेप क्या है, उसके पेरेंट्स कितने अच्छे लाइनेज से हैं, तो वो हिसाब से कॉस्टिंग्स रहते. सो वी विल इंश्योर दैट वी विल गिव यू द बेस्ट. जैसे डॉग्स वर्ल्ड में जब ये कल आए थे हम, इवन यू वर देयर, देयर वर लॉट ऑफ डॉग्स. लेकिन शिजू अगर हम लोग देखें ना, तो ये साइज से लेके ये साइज तक शिजू थी, विच इज नॉट गुड. मतलब हाँ ठीक है, अभी कोई मुझे बोलेगा यार मुझे डॉग चाहिए, मुझे कभी कभी अमर ऐसे होता है, यार यू डोंट वरी, मेरे पास 4 BHK का घर है. अरे सर, लेकिन आपके घर में टाइल्स लगी है ना, लैब्राडोर जैसा ब्रीड इज ऑल्सो नॉट गुड. उसके लिए भी, हाँ तुमको अगर वो रखना ही है तो यू गिव योर टाइम, मेक हिम प्ले इन द गार्डन्स, नीचे लेके जाओ ग्राउंड में, उसको भगाओ, ताकि घर पे आके उसको खेलने का मन ही नहीं. बहुत से लोग ये करते हैं, उनके डॉग्स के साथ घर में ही खेलते रहते हैं विद बॉल, ही रन्स, वो पटकता है दीवार पे, ये हमको मालूम नहीं पड़ता. लेकिन आफ्टर सम इयर्स, उनके बैकबोन में प्रॉब्लम आ गया, लेग्स में, हाइंड लेग्स में प्रॉब्लम आ गया, तो ये सब चीजें होते हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि अगर घर के लिए अगर आपको लेना है, तो आप कोई टॉय ब्रीड ले लो. शिजू हो गया, चिवावा हो गया, ऐसा कोई ब्रीड ले लो तो और अच्छा है. बट अगेन, मेरा लड़का मेरे इतना पीछे पड़ा, आई वांट अ डॉग, लेकिन मैं उसके लिए, यार तेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, टिल द टाइम वी डोंट गिव टाइम टू हिम, तो हमको नहीं रखना. आज तक मेरे पास डॉग नहीं. आई हैड अ डॉग व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, व्हेन ही पास्ड अवे, 2-3 दिन तक तो घर पे कोई खाना ही नहीं खाया, तो दैट्स एन इमोशन. और डॉग्स जितना प्यार देते ना, मेरे हिसाब से मेरे बच्चे भी नहीं देंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर किड्स. दे विल नॉट गिव दैट. दे आर वेरी वेरी. आपको मैं कैमरा में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरा लैब्राडोर यहीं पे बैठा है. शैडो, ही इज नॉट लीविंग मिलिंद एट ऑल, सो यहीं पे है. बाद में रिकॉर्डिंग के एंड होते समय, पॉडकास्ट एंड होते समय शायद दिखा सकूं, बट ही मे जस्ट बार्क इन बिटवीन. सो मिलिंद, एक्वेरियम से स्टार्ट करते हैं. एंड ये जो हॉबी है, आपका जो कनेक्शन है, ये बीटा फिश से स्टार्ट हुआ. यस. Whether ये यहाँ पे जो बीटा फिश है, I can't show you right now. That I'll post a photograph or a close video. This was gifted to me by Milind itself, because he was just showing it to me, and I said, look, this is exactly जैसे मेरा logo है, वैसे ही exactly है. तो Milind ने said, take it from my hand.
So thank you so much. You're most welcome, yaar, and I'm happy because I know you will keep him more happy than me. To be very That's right. honest with you. Tell us about your journey in aquariums and सी aquarium training. aquariums, मुझे ऐसा लगता है ना अमर कि लोगों को थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वी आर वेरी सॉरी टू से वी आर फार बिहाइंड, अगर किसी को मैं बोलूं बैक्टीरिया, तो दे डोंट अंडरस्टैंड इज बैक्टीरिया नीडेड इन एन एक्वेरियम। तो उनको ये समझाना पड़ता है, जैसे हमारे डब्ल्यूबीसी आरबीसी होते हैं, बैक्टीरिया प्लेज दैट रोल जब भी तुम्हारे। और देखो पानी है, उसमें जो भी हम लोगों ने, हम जो उसमें डाल रहे हैं उनका खाना, फिर उसमें अमोनिया जो हो रहा है, वो हमारा प्रॉब्लम है। इट इज नॉट कि हमारे पास पानी ही कंटेमिनेटेड आ रहा है, हम कंटेमिनेट कर रहे हैं पानी को। तो लोग क्या करते हैं, अरे मुझे मालूम है ये इतना खाना देना है, तो उतना लेते हैं, डालते हैं और चले जाते हैं अपने काम के लिए। सो दैट्स नॉट दैट थिंग। एटलीस्ट 10-15 मिनट्स व्हेन यू फीड, थोड़ा सा ले लो, डालो। क्योंकि अगर मेरा डाइट 4 चपाती है, तो मैं रोज 4 चपाती नहीं खाऊंगा। कभी कभी ऐसा हो, मुझे खाना ही नहीं चाहिए, कभी मैं एक खाऊंगा, दो खाऊंगा, सेम गोज विद फिश। तो तुम थोड़ा सा, जिस जिस टाइम वो रिफ्यूज करे खाना, यू स्टॉप फीडिंग। लेकिन लोगों को उतना टाइम भी नहीं है। और सर, बी काइंड टू अ लाइफ यार, मतलब इफ यू कांट गिव टाइम, यू शुड नॉट हैव anything, any pet or any living thing, I will say. I am even worried for the plants what we have in tanks sir, जरूरत है। कोई बोलता है, एंड पीपल उनके पास पैसा है, इसके लिए कुछ भी करते हैं, बट दे डोंट इन्वेस्ट द टाइम इनटू दैट। मेरे पास कोई आता था ना दुकान में, सर ये प्लांट मुझे चाहिए, मैंने, सर ये 50 रुपए का, आप एक काम करो, आपको देख के मुझे ऐसा लगता है आप उसका केयर नहीं, आप ये 10 रुपये वाला लेके जाओ, सालों साल जिंदा रहेगा, उसको पानी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बिकॉज दिस थिंग्स हैव रिक्वायरमेंट लाइफ। तो ये ऐसा है। तो मैं ये कहूंगा, अभी तो बहुत इजी हो गया है, तुमको कुछ भी लेना है एक बार गूगल करो, गिव थोड़ा सम टाइम, रिसर्च करो उस पे। रिसर्च करो ऑब्वियसली, कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली, अभी हॉबीज कैसे अलग अलग लेवल के हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट दे गेट। व्हेन डू दे गेट दैट एक्सपीरियंस? when they kill something, then they realize, okay, राइट। I should learn my lesson. I should थोड़ा मैं सीखूं इसके बारे में and all, because I don't want to kill anything, right? Whether that's a plant or whether that's a small fish and all, everything has got its value. Everything that life has its value. Okay, so जब अपने पास एक एक्वेरियम रहता है तो it's like almost like you are god to that little space. आप जो भी करोगे उसको वो affect करने वाला है। तो आप उसमें, अगर आप यू डोंट टेक केयर, fish are going to die. You take excellent care, they are going to thrive, they are going to breed, they are going to reward you with that little moments. So everything is like that. Today my biggest worry is कि लोग जाते हैं पेट शॉप में, एक्वेरियम शॉप में, वहाँ पे वो देखेंगे तो एक एलिगेटर गा रहा है, इतना छोटा है, बहुत क्यूट लग रहा है, तो इसको घर लेके जाते हैं। या तो रेड टेल कैटफिश है, बहुत क्यूट लग रहा है, इसको मेरे को लेके जाना है आई घर नीड पे। वी नीड टू होल्ड, हाँ, सॉरी। दैट्स इट। एंड वो लेके जाते हैं और फिश तो भाई थोड़े महीनों में, एक साल में इतना बड़ा हो जाता है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी क्या करना है। फिर वो जाके या तो देखते हैं एक्वेरियम शॉप वापस ले रहा है, एक्वेरियम शॉप बोलता है नहीं, ये इतना बड़ा कहाँ रखूँ मैं, तो फिर वो जाके तालाब में छोड़ देते हैं। अब जब वो तालाब में छोड़ते हैं तो वो इन्वेसिव हो जाता है, यानी कि जो अपने नेचुरल स्पीशीज है तालाब में उसको खाने लगता है, या तो दे compete for food, and the natural fish and the native fish start getting affected. राइट। So it's a wonderful thing that Milind, that you are doing. And again, मैं ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मिलिंद जब कंसल्टेशन देते हैं, इट्स ही गेट्स कॉल्स बिकॉज ऑफ मैनी पीपल गिव रेफरेंसेस। आपने उन्होंने मेरा एग्जांपल दिया कि मैंने अगर किसी को बोला कि अगर आपको ये लेना है तो आप मिलिंद से पहले बात कर लीजिए, तो उनको ऐसे काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं एंड he gives his advice. I'm sure not everybody takes that advice, because they will take that advice, some of them will not take that advice, but he gives it without any expectation at all. And that's something that I'll be sharing Millen's social links also at the end of this video. So if anybody anywhere in India wants something, you can always reach out to him for his advice. Millen, correct me if I'm wrong. You have experience in general fish keeping. You have experience in planted aquariums. You have experience in terrariums, paludariums.
you have experience in marine fish. No, not Not that, so not much, that, not not so that. much, but you have been there because I know Yes. we met in Right, 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 Amar's right, shop and right. all. So that is there. More importantly, सबसे ज़्यादा Milind has experience in winning competitions, taking champion betas, and I'll come straight to that point. He won a competition, international competition in Thailand, and I'm going to ask him more about that. And that fish that won for him is named Ashoka, Ashoka. the Emperor. मयूर देव एक्वास्केपर का एक बहुत बढ़िया वीडियो है। जब इन्होंने मयूर ने इनको इंटरव्यू किया तो यू शुड वॉच दैट ऑल्सो। बट उसके बारे में थोड़ा जरा बता दी, हाउ डिड यू गेट इन टू तो ये कॉम्पिटिशंस? ऐसे हुआ कि थाईलैंड में तो कभी एक 4 महीने में 5 महीने में एक बार जाना होता था। सो वी यूज्ड टू बी इन द जेजे मार्केट। तो मुझे एक दोस्त मिला वहाँ पे, वॉज फुल टाइम इनटू बीटास। तो आई गॉट वेरी क्लोज क्योंकि बीटास वाज माय लव। तो फिर मार्केट्स जाओ, ये करो वो करो। तो हम लोग के 4-5 लोग वहाँ पे बहुत अच्छे पहचान के। देयर वाज अ गर्ल हु सेड, अरे मिलिंद, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन दिस? आई कैन नॉट। Why? Because we cannot carry fish with us from there. So she gave me an idea, Milan, why don't we raise a fish for you over here? Fair enough. So after 4 months there was a competition. So हम लोग ने 10 फिश सिलेक्ट किए वो टाइम कि मतलब दे विल गो इनटू दैट कंपटीशन। और हमारे So you selected the fish that would go into the competition at that time. दैट टाइम इट वाज नॉट मी, टू बी वेरी Hmm. ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था Hmm. कॉम्पिटिशन्स Hmm. में। अभी थोड़ा सा पता है। तो दे हेल्प मी, बोलते मिलिंद दिस फिश विल गो। मतलब चलो ठीक है। सो आफ्टर 2 मंथ्स वी स्टार्टेड। तो वे तभी मैं 6 महीना हर महीने में बैंकॉक जाते रहा। नवंबर 23 में देयर वाज दिस कंपटीशन व्हिच वाज एट। तो 10 फिश लेके हम लोग पहुंचे वहां पे, और अशोका जो था वो 11th फिश था Hmm. वहाँ पे। तो हम लोग ने एनरोल किया। आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे मालूम था नो वन हैज एनरोल्ड इनटू दिस कंपटीशन फ्रॉम इंडिया एज ऑफ नाउ। इट इज पार्टिसिपेट किया तभी जब भी मैं लिख रहा था मिलिंद रामजी वर्स इंडिया। आई वॉज वेरी प्राउड, आई वॉज वेरी प्राउड टू बी Right. वेरी ऑनेस्ट। तो हम लोग ने एनरोल किया, 11 फिशेज भी एनरोल। एंड दिस लास्ट fish which was blue and white, that's the reason we named him Ashoka, because the emblem what we have Yeah. is Yeah. blue and white. Blue and white. तो तभी वी गॉट अ सेकंड रनर अप, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट प्राइज व्हिच केम इन इंडिया फॉर अ बिटा फिश। Right. सो वहां से एनकरेज हो गया, फिर दूसरा कंपटीशन किया। उसमें भी हम लोग के 5 फिश थे, उसमें 2 प्राइजेस मिले Wow. हमको। सो वी केप्ट ऑन डूइंग दैट। अभी फिलहाल ब्रेक है क्योंकि मेरा दोस्त है, ही इज फ्रॉम मलेशिया, तो उसको थोड़ा सा वहाँ पे जाना आना था। तो और मेरे भी घर पे एक फंक्शन है। सो आई टुक अ ब्रेक ना, और probably from next month onwards we'll be doing it again. But it's a fun, और मतलब ऐसा ही नहीं कि जजिंग भी होती है ना वहाँ पे हमारे, ऐसे होती है। अभी समझो ये एक बेटा है, आज तक मेरे पास फ्लेयर कर रहा है, लेकिन कंपटीशन में जाने के बाद फ्लेयर ही नहीं कर रहा है। द जज विल गिव हिम प्लेंटी ऑफ टाइम। वो अगर सेटल नहीं हो रहा टिल द टाइम ही इज नॉट फ्लेयरिंग, लास्ट मोमेंट मतलब वो आपको पूछेंगे, अरे ये तो स्टिक से फ्लेयर करता था क्या? हाँ करता था, अभी नहीं कर रहा, ओके। तो वाटर चेंज करने के बाद इमिडिएटली करता था क्या? हाँ करता है। तो दे विल इमिडिएटली चेंज द वाटर ऑल्सो। और एक बात वो बोलेंगे, अच्छा ठीक है, उसके बाजू में कौन सा फिश था जिससे कलर में वो रिएक्ट करता था, तो हम लोगों ने यहाँ रेड रखा है, नहीं नहीं इट वॉज ब्लू, तो वो ब्लू फिश ला के रखेंगे। Wow. सो इतना करते हैं वो लोग। एंड ऐसा नहीं कि हाँ देख लिया हो गया, नो। सो आई वॉज वेरी हैप्पी लुकिंग एट दैट। So this is the way the competition Level of professionalism and the and the competitions. patience। Yeah. और ऐसा नहीं 2-2 दिन पूरा वो जजिंग ही करते रहते, और वो भी डिविजन्स इतने रहते हैं हमारे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट देयर वर 21 डिविजन्स इन व्हाट वी पार्टिसिपेटेड। 21 डिविजन्स, देयर वर अराउंड अबाउट 1550 फिशेस। So just audience के लिए also ये 21 divisions would be like say half crown, full moon, Yes, that kind of thing, yes, yes, placard yes, and all, yes, right? yeah, Or do they have wild betas also in that yes, wild competition? betas also, Okay. yes, yes. So tell us a little bit about the divisions also. And judge की तरफ से judging criteria primarily क्या रहता है? जजिंग क्राइटेरिया बोला तो बेसिकली उसका हेड,
mm, जो बुलेट शेप का होना चाहिए, mm. it goes like this. Pointed, yeah, Yes, yeah. it has to be a bullet shape. फिर अभी जब भी फिश टैग करता है, Mm, यू नो तो उसके पूरे फिन्स शेप में होने चाहिए, mm, mm, ओके, कट्स नहीं होने mm. चाहिए, Right. ओके। फिर सबसे बड़ी बात, तुम लोगों ने जिस डिवीजन में उसको डाला है, अगर आप उसको सॉलिड कलर्स में डालते हो, तो इट हैज टू बी अ सॉलिड कलर, इट हैज टू बी ब्लू, इट हैज टू बी रेड, इट Right. हैज टू बी व्हाइट, इट हैज टू बी येलो। उसमें थोड़ा सा भी ब्लैकिश वगैरह को चाहे, इट इज रिजेक्टेड एट द फर्स्ट। फिर उसका स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा होने दो। Mm, सो दीज आर द पॉइंट, व्हाट जजेस सी बेसिकली right. इन अ फिश। What about this fellow? Will he make it to a नो, competition? नो, Why? आई टेल यू व्हाई। बिकॉज इंडिया में हम लोगों को जितना ज्यादा फिन बड़ा है ना, वो अच्छा लगता है, ओके। वहां पे वैसा नहीं है, द Huh. fins हैज टू बी स्ट्रेट। अभी ये देखो कितना भी, ये देखो, यू कैन सी द कर्व्स, Yes, yes. ओके, वो दैट इज फेलियर। Uh, इट हैज टू बी स्ट्रेट, इट हैज टू बी वेरी स्ट्रेट। mm, उसमें थोड़ा सा भी कर्व आ गया ना, तो ये अलग कैटेगरी में जाएगा। लेकिन ये कैटेगरी, ये जो फॉल थोड़ा सा आ गया ना फिन पे, mm, ही विल नॉट विन। मतलब उसको एनरोल भी नहीं करेंगे वो कंपटीशन में। right, मतलब एज अ right, कॉम्पिटिटर right, मैं नहीं करूंगा उसको, right. बिकॉज आई न्यू कि मतलब वो उसमें आएगा ही नहीं। इंडिया में इंडियन जो हमारे यहाँ पे लोकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें क्या चेंज आना चाहिए? व्हाट शुड बी द चेंज that after seeing international competitions you would say that for the organizers in India they should follow that? If I'm not wrong, I did not follow the competition which was in Kolkata. I guess 3 or 4 months back. मुझे जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया। Mm, I heard there was international judge. mm, ये IBC होता है, इंटरनेशनल बेटा mm, mm, कंपटीशन के जजेस। और आई एम ग्लैड कि आई नो वन ऑफ देम mm, इन थाईलैंड। वेरी गुड गाय, ही विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट क्या होना चाहिए क्या नहीं। एंड आई लव टू स्पेंड टाइम विथ हिम। तो तभी इंटरनेशनल जज, बट वर दे ऑफ दैट कैपेसिटी की ये। लेकिन कैसा है मन में, मतलब अपने यहाँ पे इतना बेटा के लिए अभी कुछ हुआ नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट समवन कैन हेल्प मी। सी, मुझे दुख एक बात का है, आई वन दी ट्रॉफी, मतलब जो भी है फर्स्ट प्राइज वगैरह, फर्स्ट प्राइज व्हाट वी गॉट फॉर अ बेटा। लेकिन मुझे दुख ये है, द बेटा वॉज फ्रॉम थाईलैंड, वी ग्रू हिम देयर, और वहाँ पे ही कंपटीशन। mm. मुझे खुशी इस बात की तभी होगी ना, व्हेन द बेटा विल बी फ्रॉम इंडिया, ही इज ब्रेड इन Correct. इंडिया। और लेकिन हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। But यहाँ से वो फिश कैरी करने में आपका जो पेपर वर्क लगेगा और वहाँ पे उसका जो एंट्री में पेपर वर्क लगेगा, दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी क्वाइट अ टास्क, नो? एग्जैक्टली exactly. लेकिन वो क्या है, इट इज मेड इन इंडिया, इट इज मेड इन इंडिया एंड वी हैव दैट कैलिबर। Mm, पहले ब्लैक गोस्ट, आई रिमेम्बर मी एंड स्वप्निल पेनकर, तभी साने साहब हुआ mm, करते थे। mm, साने साहब फॉट अ लॉट विद द गवर्नमेंट की, जैसे सिंगापुर में फार्म वे है, mm, दे गिव सब्सिडी टू द फार्मर्स, mm, तुम रेस करो। लेकिन अपने यहाँ पे नहीं हो रहा है। ब्लैक गोस्ट जैसा फिश यहाँ पे ब्रीड हुआ। mm, आई टेल यू व्हाट, वी वर इन चेन्नू, mm, थाईलैंड, mm, और ये इलेक्ट्रिक ब्लू रैमिरेज पहली बार हम लोगों ने देखा था। mm, दे रिफ्यूज टू गिव इट टू अस। तो मतलब स्वप्निल को चाहिए था, तो स्वप्निल ने पूछा क्यों, तो नहीं, वी डोंट वांट टू गिव इट टू इंडिया। अरे व्हाई, ही नेम वन पर्सन एंड आई एम स्टिल हैप्पी, mm, मिस्टर श्रीराम हाथवर ने। mm, mm. तो ही सच अ गाय, ही विल टेक द फिश, ही विल ब्रीड एंड देन वी आर ओवर। Okay. सो So for the audience, Mr. Sriram Hatwale is from Mumbai यस, and he's a very well-known breeder. And while this particular exporter was not happy sending it to India, okay, we are quite happy having him over here because he breeds some really world-class fishes over here, and he circulates those over here. He supplies those. So I'm glad you brought it up, and I'm hoping at some point of time I'll be interviewing him as well. yes, So, exactly, yeah, yeah. And you forgot to tell him, tell the audience, people, yeah. audience, that he was a judge. There were three judges for a discus competition. Two were foreigners and one was Mr. Shriram Hathwal in Marli, the competition what Right, has happened right, for discus. right, So it's our pleasure that we know him, right, we chat with him, right. and thank you, Shriram ji, for the aquarium industry, I will say. Yeah. So back to the so ये
practical challenge. I like the approach you have taken. So you have gone in like how people, घोड़े पे bet लगाते हैं. They have a knack for it. ऐसा नहीं कि ऐसे ही random हो जाता है, right? They have a knack for picking up the winners. Exactly. And so Milan was like the sponsor over here who kind of went ahead and said, okay, great, let's and he was part of those people who the team who selected those. It's a good approach, and that it won, so that is good, and I'm glad that it has motivated you आपको और motivate किया है कि और इसमें ये करें. I think that's good. It's good news for us in India. Today we have so many people. When you say aquascaping, also we have so many people who are going and making headlines, winning competitions, Yes. and making headlines for India. It's a great time to be an Right, Indian, right. right? And especially so in the hobby also. So, आपका और एक्वेरियम लाइन में आपका और कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? Pandemic कैसा था for you? What how was the pandemic? It's something that I always ask people because I've gone through the pandemic, and we survived, okay, and we had our tough times and all, and we survived, right? And I know for people, because I closed Tropico Aqua just just a little before the pandemic, and I sometimes when I look back I say, okay, everything happens for the right reasons, and maybe because had the gallery been on, I stay in Thane. It's in New Right. Bombay. It would have been a nightmare for me. But how was the pandemic experience for you? I was working then, and see, what I have learned in my life, when you prep for something, you never settle down. Mm, So you have to always be positive. mm, For me, plantation was my learning in that years. mm, I built my first plantation tank at home in pandemic. So there were a lot of time Monte Carlo growing, anything. So I did the hardscaping with stones, I think it was serene stones. I made a theme of jungle, it was very nice for me. So I will never regret for the pandemics. So, and like said, always be positive, and everything will be positive for you. That time, as I said, there were no financial crisis as mm, such because I was working. mm, I left my job in 21. mm. After that, pandemic, Yeah, it mermaids eased marts out. were there, Yeah, but I did more business there. yeah. You know why? Because everything was else closed and we were in a corner, so there was less restrictions for us, Mm, mm. and it was necessary, business what we were doing. Correct, correct. So police also used to leave Mm. us because it was Right, food for fish right, or right, right, pets. right, So it was really nice. right. It was a learning for me because plantation isn't still, I really can't get more deep into it. So whatever I suggest people, it is basic, but when it comes to plantation, I will refer your name, I will refer Amit, I will obviously refer Mayur Dev sir, if he Yeah, has time. yeah, yeah. Rajan Patil is there, So many, so yeah, many, yeah, yeah, so many so-called veterans yeah. around us. You know, how did you get into birds? What all birds? First, tell us about the variety. Yesterday, when I saw you, I went to the exhibition where William was participating, and they had this special room created where the birds could fly free, and we were the ones in the cage. Okay, so and they could come and sit on your hands and all. It was amazing. I could see some Amazon greys over there. Yes. I don't know whether I saw any Cockatoo. cockatoos. I saw budgies. I saw. So tell us a little bit about that. See, I like to see happiness on anyone's face, and when you see the small little, champs coming in, they are so excited, they are so excited, and mainly, people don't get to touch a bird, so that is very, very important. And see, that is, my way of touching people's heart, so they are happy, they're very curious, touching hand. And now this time, I have kept small birds also, because macaws and cockatoos and greys, they are, perch is little Mm. hard, the grip. The claws and all. Yes. Yeah. Mm. So when small children are there, budgies were there, ALBs, African lovebirds were there, cockatiels were there, Mm. conus were there, so they were really loving it.
and that's my main motto, to come. It's not, two Do days. you breed them also? Yeah, yeah, we have a section, a small section at our house only, Okay. where we have African greys. African Yeah, Greys, yeah, huh? we have 4 pairs over there. So, what's the life of an African Grey parrot? 40 years. 40 years. Yes, Wow. 40 years. And they say, in wild it is less. If you care for him properly, it can grow either 1 or 2 years more. Right. Yeah. Wow. And there are needs, basically. And the worst part I will tell you about birds, when you feel or when you see that bird is sick, that time he is in an ICU. कि क्या होता है अमर, जब भी बर्ड वाइल्ड में होता है, वो अगर बताएगा कि मैं बीमार हूँ, तो अदर बर्ड्स विल अटैक. Yeah. तो ये इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है. Mm. वो जब तक आप देख लोगे कि आपको समझ में आएगा वो बर्ड बीमार है ना, दैट टाइम ही इज इन आईसीयू. Mm. तो उनके ड्रॉपिंग्स होते हैं ना सुबह के, तो यू टू एग्जामिन दैट, उसमें वाइटिश ज़्यादा कलर नहीं होना चाहिए, या तो फिर वो जो खा रहा है वो वैसे ही बाहर आ रहा है क्या. दीज आर थिंग्स यू नीड टू मॉनिटर व्हेन यू हैव अ बर्ड. बस उतना ही है. बर्ड्स आर वेरी इजी टू कीप, लेकिन वो मॉनिटरिंग थोड़ा सा करना है. I heard that keeping birds like African grey parrots is almost like keeping a dog. They, they, they also have the IQ of a 4 5 year old kind of this thing. Do they have that kind of an intelligence? They can intimate anything. Mm. They can imitate, sorry, Mm. I'm sorry, imitate anything. Mm. Mm. एनीथिंग मतलब, यार यू विल नॉट बिलीव. मेरे पास जो, मैं उसको पूछता था सैमसंग, तो वो सैमसंग तभी टा 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 टा, Yeah. वो टोन, मैं उसको पूछता था हाउ डज अ फोन रिंग्स, तभी घर पे एक ही फोन हुआ करता था. माय मॉम यूज्ड टू बी अलोन, तो वो क्या करती थी, बाहर से टेलीफोन का रिंग. अभी वो किचन में, तो किचन से बाहर हेलो हेलो कर रहे, अरे दैट बिल इज रिंगिंग. वी हैव हॉकर्स कमिंग इन, केला वाला, मच्छी वाला, एवरीथिंग शी इज टू इमिटेट, एवरीथिंग. मेरे दो बच्चे हैं, साक्षी एंड श्रेया. साक्षी आती थी सामने तो, अरे श्रेया कुठे है, वी स्पीक मराठी. Right. साक्षी देखी, श्रेया कुठे है. सो इट वाज दैट. और वो सुबह सुबह वो बच्चों को उठाना, माय वाइफ यूज्ड टू से, अरे श्रेया उठ, श्रेया उठ. आई स्टिल हैव द रिकॉर्डिंग, आई कैन शेयर इट विद यू. And they will also, mimic the tone. मतलब तुम अगर हेलो बोलोगे तो वो टोन में तुमसे हेलो बोलेगी. अदर पर्सन, मेरा टोन अलग है तो वो टोन में हेलो, हेलो, दूसरा कोई हेलो. So it goes that way. They are very very intelligent birds, and it's proven. Yeah, amazing, amazing. So, Milind, if you were to give an advice to our hobbyists and to our, especially the aquarium hobbyist, and see, when I say aquarium hobbyist, also we need to understand that we are not only stuck to aquariums as such, right? It may be our primary hobby, but we are equally into plants, terrestrial plants. We are also equally into birds, dogs, pets. We love all animals. We love all creatures, and you are already into consulting for a lot of them, right? Uh, what would your advice be to people who want to keep it, right? Who want to start off, and would you kind of say start off with an aquarium, start off with this, or do you kind of get to understand them, what do they like, and then kind of advise them, and what would your advice be also? अमर, मैं यही बताऊंगा लोगों को, तुम्हारे पास कितना टाइम है फॉर दैट पेट. Hmm. वो हिसाब से तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अगर तुम बोलोगे कि नहीं नहीं वी आर वर्किंग, मतलब जो हमारी हेल्प है, शी विल टेक केयर, Yeah. या मेरे बच्चे का बर्थडे है तो उसको गिफ्ट करना है, सो प्लीज डोंट डू दैट. Hmm. ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम है. अगर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है और तुमको पेट रखना ही रखना है, कीप अ कैट. They will not bother. दे विल नॉट बॉदर. उनको खाना 2 टाइम दे दिया, पानी दे दिया, बस दे आर ऑन देयर ओन. डॉग्स आर डिफरेंट, Yeah. बर्ड्स आर डिफरेंट. बर्ड्स डायरेक्टली बड़े बर्ड्स के लिए मत जाओ. ट्राई कॉकटेल फर्स्ट, क्योंकि नॉर्मली किसी के पास भी आता है और वो
लाइट रहता है, तो पीपल कैन मैनेज. अगर तुम डायरेक्टली एक कॉकाटू लो और जिसको अच्छा लगता है वो भी पहले अगर उसको जोर से पकड़ भी लेगा, ग्रिप भी कर लेगा, तो बोलेगा नहीं यार, इट हर्ट्स. सो ट्राई विथ स्मॉल बर्ड फर्स्ट, उसके मजे लो, और फिर बाद में अगर तुमको मकाओ भी लेना है तो यू कैन गो अहेड विद Amazing. So the advice is to really think through. पहले सोचो आपकी needs क्या है, आप कितने उनके needs को fulfill कर दैट. सकेंगे. राइट. और बिकॉज आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप कितना टाइम दे पाओगे, तो ये सब सोच लेना. एंड इफ एवर यू नीड सम एडवाइस, यू कैन ऑलवेज कॉल Milind. श्योर, श्योर. Okay. Milind, it's been great. I enjoyed my conversation with यस. you, and I hope to catch with you again and again. So, श्योर, 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 श्योर. we'll pick up some special topic and all, and we'll have your views on that. Okay. 100%. 100%. So thank you everyone for joining the Weekend Activist. Do like, share, and subscribe to our channel. Motivate us, because that's how we keep going, and meeting legends who are making a difference to the hobby. So looking forward to the next episode.